کالو گوری سے کہتا ہے، گوری آج بھی تم نے اپنا گھونسلہ ٹھیک نہیں کیا، تم اتنا آلس کیوں کرتی ہو؟ گوری کہتی ہے، کالو میں بہت تھک گئی تھی اسی لیے نہیں بنا پائی۔ کالو کہتا ہے، سارا دن گھر پر ہی پڑی رہتی ہو پھر بھی ایک چھوٹا سا گھونسلہ نہیں بنا پائی، اب یہ مت کہنا کہ آپ نے گھونسلے میں مجھے سلا لو۔ گوری کہتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا بندوبست خود کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالو کہتا ہے، اب ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، تم اپنا بندوبست کر لینا، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ گوری کہتی ہے، میں آج گولڈی چڑیا کے گھر چلی جاتی ہوں، وہیں سو جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، آج یہاں کیسے آنا ہوا گوری؟ گوری کہتی ہے، گولڈی بہن میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے آج اپنے گھر میں سلا لو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، پر میں اور نیلو کہاں سوئیں گے؟ گوری کہتی ہے، تم دونوں ایک گھونسلے میں سو جاؤ، میں ایک میں سو جاتی ہوں۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اگلے دن کالو پھر گوری سے کہتا ہے، آج بھی تم نے گھونسلہ نہیں بنایا، اب تمہیں کیا روز گولڈی ہی سلائے گی؟ گوری کہتی ہے، مجھے اپنا دھیان رکھنا آتا ہے، تم اپنا کام کرو کالو، میں اس گولڈی کے گھر ہی سوؤں گی۔ پھر گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کنڈی کھٹکھٹاتی ہے۔ گولڈی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میں آج دروازہ نہیں کھولوں گی، اس گوری نے تو مجھے پریشان ہی کر رکھا ہے۔ گوری کہتی ہے، اس چڑیا کی اتنی ہمت، اس نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں بھی گوری ہوں۔ پھر جب دن میں گولڈی کہیں کام سے گئی ہوئی تھی، گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور گھونسلوں میں پانی ڈال دیتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اب مزہ آئے گا اس چڑیا کو، اس نے مجھے منع کیا تھا نا، اب دیکھو گوری کو منع کرنے کا نتیجہ۔ جب گولڈی واپس آتی ہے تو کہتی ہے، ارے ہمارے گھونسلے میں کس نے گیلا کر دیا، اب ہم کہاں سوئیں گے؟ ضرور اس گوری نے ہی کیا ہوگا، میں اس گوری کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر ایک دن گولڈی جنگل جاتی ہے اور کھجلی والے پتے لے کر گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور گوری کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے، گوری بہن آج آپ ہمارے گھر ہی سو جائیں، مجھے اس دن کا افسوس ہے جب میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ گوری کہتی ہے، چلو میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ جب گوری گھونسلے میں بیٹھتی ہے تو اسے کھجلی مچنے لگتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے مجھے کھجلی کیوں مچ رہی ہے؟ گولڈی تم نے اس گھونسلے میں کیا ڈالا ہے؟ گوری کھجاتے کھجاتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اب پتہ چلا نا گوری کو گولڈی کو پریشان کرنے کا نتیجہ۔ ایک پیڑ کے ایک طرف گوری کا اور دوسری طرف گولڈی کا گھونسلہ تھا۔ گوری اور کالو بہت ہی بدمعاش تھے، انہیں دوسروں کو پریشان کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ گوری کہتی ہے، سنو کالو، بہت دن ہو گئے ہم نے کوئی موج مستی نہیں کی ہے، آج میرا من موج مستی کرنے کا کر رہا ہے، کسی چڑیا کو پریشان کرنے کا من کر رہا ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں میرا بھی من یہی کر رہا ہے، سنا ہے ہمارے اس پیڑ کے دوسری طرف چڑیا کا گھونسلہ ہے، کیوں نہ اس چڑیا کو پریشان کیا جائے؟ گوری کہتی ہے، صحیح کہہ رہے ہو کالو، آج تو ہم اس کا گھونسلہ ہی توڑ دیں گے۔ دوسری طرف گولڈی چڑیا دانہ لینے گئی ہوئی تھی۔ کالو گوری وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، واہ واہ، کتنا سندر گھونسلہ بنا رہی ہے یہ بیچاری چڑیا، یہ گھونسلہ توڑنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں گوری، آج تو مزہ ہی آ جائے گا،
चिड़िया का मुंह तो देखने लायक होगा। अब जल्दी करो, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए तो हमें घोंसला तोड़ते हुए देख लेगी। फिर दोनों घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब गोल्डी वापस आती है तो टूटा हुआ घोंसला देखकर उदास हो जाती है और कहती है, अरे ये मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया, अब मैं कहाँ रहूँगी। तभी पास में ही नारियल के पेड़ से आवाज़ आती है, गोल्डी परेशान मत हो, मैंने सब देखा है। तुम्हारा घोंसला उन दुष्ट कौवों ने तोड़ा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी नया घर देता हूँ। ये कहकर नारियल का घर गोल्डी को एक नारियल का घर देता है। गोल्डी खुश हो जाती है और उसी में रहने लगती है। जब गोरी वहाँ आती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये घर कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। तभी गोल्डी आ जाती है और कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा घर तोड़ोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता है, मेरा घोंसला तुमने तोड़ा था। गोरी कहती है, हाँ मैंने ही घोंसला तोड़ा था, अब मैं ये घर भी तोड़ दूँगी। तभी नारियल के घर से गोरी के ऊपर नारियल बरसने लगते हैं और गोरी वहाँ से भाग जाती है। फिर गोल्डी हमेशा उस घर में खुशी खुशी रहती है। गोल्डी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाए हुए थी। उसने 2 अंडे भी दिए हुए थे, लेकिन जिस पेड़ पर गोल्डी ने घोंसला बनाया था वो पेड़ काफ़ी कमज़ोर था। गोल्डी कहती है, वाह मेरे प्यारे अंडे, जल्दी ही मेरे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। मैं अपने बच्चों की खूब देखभाल करूँगी और उनको अच्छे से रखूँगी। फिर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और गोल्डी उनकी खूब देखभाल करती है। एक दिन गोल्डी का घोंसला जिस पेड़ पर था वो पेड़ टूट जाता है और नदी में गिर जाता है। गोल्डी का घोंसला पानी में बहने लगता है। गोल्डी के बच्चे चिल्लाते हैं, माँ मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब जाऊँगा। गोल्डी कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ बेटा, घोंसले पे ही रहना। फिर गोल्डी दोनों बच्चों को बचाकर नदी के बाहर निकाल लेती है। गोल्डी का बेटा कहता है, मम्मी अब हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बच्चों, मैं तो हूँ, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो कर ही लूँगी। फिर गोल्डी अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू के घर चली जाती है। कालू कहता है, गोल्डी तुम यहाँ क्यों आई हो अपने दोनों बच्चों को लेकर? गोल्डी कहती है, कालू मेरा घोंसला टूट गया है, जिस पेड़ पर मैंने घोंसला बनाया था वो नदी में गिर गया है, हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। कालू कहता है, यहाँ से भाग जाओ तुम लोग, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे लिए खुद ये घर छोटा है। ये कहकर कालू उन दोनों को बाहर निकाल देता है। गोल्डी अपने बच्चों को लेकर जंगल की ओर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा अंडा गोल्डी को दिखाई देता है। गोल्डी कहती है, ये कैसा अंडा है, ये तो बहुत बड़ा अंडा है। तभी वो अंडा एक अंडे के घर में बदल जाता है और आवाज़ आती है, मैं जादुई अंडा हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तुम्हारे बच्चों को परेशान होता हुआ मैं नहीं देख सकता, इसीलिए तुम इस घर में अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। फिर गोल्डी उसी घर में रहने लगती है। कालू और गौरी ने चिड़िया के बच्चे नीलू को बचपन में ही चिड़िया से चुरा लिया था। वो उससे सारा काम करवाती और उसे मारती भी थी। गौरी कहती है, सुनो नीलू, तुम आजकल ठीक से काम नहीं कर रहे हो और ज़्यादा दूसरी चिड़ियों से बात मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा दूसरी चिड़ियों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नीलू कहता है,
पर मैं तो सिर्फ बात करता हूँ, मैं अकेले काम करके बोर हो जाता हूँ। गौरी कहती है, ज़्यादा ज़बान मत लड़ाओ, मैं सब जानती हूँ। देख रहे हो कालू, कितनी ज़बान लड़ाने लगा है ये। कालू कहता है, हाँ देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही ज़बान लड़ा रहा है। नीलू, अब तुम अगर किसी चिड़िया से बात करते हुए मिले तो बहुत पिटोगे, समझ रहे हो ना? नीलू कहता है, ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। फिर एक दिन नीलू जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहा था, तभी उसे एक चिड़िया पानी में डूबती हुई दिखती है। नीलू देर ना करते हुए उस चिड़िया को बचा लेता है। फिर नीलू पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो गोल्डी चिड़िया थी। गोल्डी कहती है, शुक्रिया बचाने के लिए, मैं तो इस पेड़ पर बैठी हुई थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ डूबने लगी। नीलू कहता है, चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। गोल्डी कहती है, ठीक है चलो। गोल्डी उसको अपने घर ले जाती है। कालू उसका घर देखकर हैरान हो जाता है। कालू कहता है, इतना सुंदर घर सोने का मैंने कभी नहीं देखा, क्या ये तुम्हारा घर है? गोल्डी कहती है, हाँ ये मेरा घर है, चलो अंदर से तुम्हें घर दिखाती हूँ, फिर तुम्हें एक बात भी बताना है। नीलू उसके साथ अंदर चला जाता है। नीलू कहता है, ये घर तो अंदर से भी बहुत सुंदर है, लेकिन तुम मुझे क्या बताना चाह रही थी? गोल्डी कहती है, तुम्हें पता है जिन्हें तुम अपना माँ बाप मानते हो, गौरी और कालू, वो तुम्हारे असल माँ बाप नहीं हैं। गांव में सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन गौरी के मुँह न लगाने के कारण कोई तुम्हें बता नहीं पाया, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। नीलू कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये बात सच है तो मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊँगा। अब मुझे समझ में आया, मुझे दूसरी चिड़ियों से बात करने क्यों नहीं दिया जाता था। गोल्डी कहती है, ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकते हो, मेरे भी माँ बाप गुजर गए हैं, मैं भी इस घर में अकेली रहती हूँ। फिर दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं।